Am I audible to everyone? Yes, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So uh, now we have completed with the conversion also. I have taken two examples. Rest of the examples you can do by yourself. Do as a homework. Okay. Now we will shift to the other part now. Lab part I will take. Let me complete first the registers and the uh, some concept related with the register. Okay. Then I will take the lab. Okay. In the same lecture, I will be taking the lab also. After the completion of the flip flops, now we have to understand the registers now. And once we have done with the register, then I will explain you shift register. And after shift register, we will move towards the lab because there is one experiment which is based upon the shift register. So let me complete the concept of register first. Then we can proceed to the lab. Now we will start with the next topic, that is your register. So we have to understand what do you mean by register. Register. Okay. Now here we have understood one thing, that when you talk about the register, we have to understand before register. We have to understand what do you mean by flip flop. So we have studied what do you mean by flip flop. So can anyone of you tell me what do you mean by flip flop, or tell me the application of flip flop? It stores one bit. Flip flop is a storage element which will store one bit, which will store one bit. So when you talk about the flip flop, when you talk about the flip flop, you have understood. Let me take any example. If I'm taking D example, D is the most easiest way, easiest flip flop to understand, because whenever you give D is equals to one, you will get Q is equals to one. Whenever you give D is equals to zero, you will get Q is equals to zero. So that is why it is called as a data flip flop, or it is called as a delay flip flop. So when you talk about D flip flop, you know that it is going to store only one bit at a time. D flip flop is going to store one bit at a time. Even though it has two output, it will complement the Q. So it is Q bar. Okay. And it is a flip flop. So you know it requires clock. And we have studied there are four different clocks which we can give. So I'm not going to go detail into that. Here, before I explain you the register, I'm just revising that flip flop, that it is a basic storage element which will store one bit at a time. And the best example which I can quote here is D flip flop, which is called as a delay flip flop or data flip flop. Now, suppose if I want to store 4 bits or more than one bit, then obviously I require more flip flops. So one bit storage, use one flip flop. If I have to store 2 bits, use two flip flops. If I use 3 bits, use three flip flops. So and so forth, it will continue. So depending upon how many bits you have to store, you have to select number of flip flops. Okay, and these array number of flip flops is collectively called as registers. They are called as registers. Okay, so I can say registers is a storage element which will store more than one bit, which will store more than one bit. Okay, so always register is a term which is mostly used when we have more than one flip flop, which we have more than one flip one which more than one flip flop. Now this storage can be in different ways. Okay, because in the flip flop, I have to give the input. You give the input for D flip flop through D. You give the inputs to SR flip flop through SR. You give the input to JK flip flop to JK, and you give input to T flip flop through T. So whenever you give the data inputs to the flip flop, it may be any of the flip flop. You have to see that how these flip flops are arranged, how these flip flops are arranged, so that it forms the register. So that it forms the register. Okay. Now, when you talk about the registers, there are different types of register.
So these registers are SO, these registers are SIPO, these registers are PISO, and these registers are PIPO. So if I take the what is SISO, SISO stands for serial in, serial out. SIPO PO stands for serial in, parallel out. PISO stands for parallel in, serial out, and PIPO stands for parallel in, parallel out. Okay. So if I'm drawing a general, a box which is called as a register, and the register consists of the number of flip-flops depending upon how many bits I have to store. Okay. So the input to this register and output to this register. Okay. Depending upon how the inputs are given and how the outputs are taken, we have 4 types of registers: serial in, serial out. You give the input serially and take the output serially, so it is called as SISO. Serial input, parallel output. Give the input serially and take the output parallelly. Take the output parallelly, so it is called as SIPO. When you give the input to the register in the parallel manner, then it is called as parallel input. And whenever you take the output only in the serial form, then it is called as PISO, that is parallel in, serial out. And whenever you give the parallel input as well as you take the parallel output, then it is called as PIPO, parallel input, parallel output. So ultimately, it depends upon how do you give input and how do you take output. Okay. Now something more on this, if I have to reflect, then if I'm talking about the serial in and serial out, we have to understand that how the data has to be given. So for example, if I'm taking the register, now this is a register which consists of different flip-flops. So if I am using 4-bit of register, now it can be, I can write down here register as F flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2, and flip-flop 3. So under the serial input and serial out, we are giving the data serially. So data is given to flip-flop 0. Now this is in general. Okay. Now whenever talk about the register under SISO, so you will give the data serially. So serial data is given at flip-flop number 0 or flip-flop 0. So the serial data input is from flip-flop 0. And where do you take the output? You take the output from flip-flop 3. So this is your serial data output. अब ये तो जनरल है. अगर मुझे D flip flop में दिखाना है, so I will be drawing 4 D flip flops. Now this is in particular. This is your data input, so I will give here D0. Here it is Q. अभी मैं Q बार नहीं लिखता हूँ for better understanding, complexity कम करने के लिए. So this is your Q0. Now this becomes D1. This becomes D1. Okay. Then the output of this becomes Q2. Sorry, the Q1. Then the input to this flip flop, let me write down this as D flip flop 0. This is a D flip flop 1. This is a D flip flop 2. And this is a D flip flop 3. Okay, this is 3. So D0, Q0, then this is D1, Q1, then this is a D2. And the output of this is Q2. This will become now D3, and output is become here Q3. Obviously, I have to give the clock, so it is a synchronous. All the clocks will be combined together. And here I am having clock. It is a synchronous flip flop. So all the clocks are combined together and it is given. Now here D0, actual my serial data
So my serial data, so I am writing down here as DIN, the data which I am giving. Okay, so here there are 4 flip-flops are there. So these 4 flip-flops are used to store 4-bit. So your D in, suppose I am giving my 4 inputs as 1010, 1010. Okay, so the first serially you are giving, so you will give your, first you will give your MSB. You will start with the MSB. Okay, after 1 goes inside, then comes 0, then comes 1, and then comes 0. This is how the inputs are given. So first you are giving 1, so 1 will go from D0, it will go to D flip flop. Okay, then the clock pulse will be given. Once the clock pulse will be given, then the output of Q0 will be available. Then this, at that time the Q0 will be 1. Now initially I'm talking about, initially your Q0, your Q1, your Q2 and Q3 are all 0 initially, before I give the data input as 0 1 0 1 0. Before I give the data input as 1 0 1 0, initially 0 0 0 0 are the outputs. Okay, so whenever I give D0, so whenever you give D0, that means 1. Whenever I give 1, that time your Q0 will be 1, provided you give the clock. And what about the Q1, Q2 and Q3? They will be having 0 only. Okay, then the next time you give this 0, this 0. Okay, then this Q1 will be given as an input to D1. Here Q1 will become 0 after I give the clock, but after I give the clock, then at that place Q0 will become 0. देखो सीक्वेंस क्या है, अगेन आई एम राइटिंग डाउन 1 0 1 0. पहले D0 जाएगा, पहले क्लॉक में फर्स्ट क्लॉक Q0 will be 1, Q1 will be 0, Q2 will be 0, Q3 will be 0. Second clock your 0 will go inside, so that your Q2 will be 0, your Q2 will be 0. Okay, and what about your Q1? Your Q1 will be 1, because that will be shifted, because D1 will take initial Q0 is equals to 1 as an input, so Q1 will be 0. In this case Q2 will be 0 and Q3 will be 0. For third clock your 1 will go input, your 1 will go inside. In that case Q0 will become 1. मैं कॉमा देके 1 लिख रहा हूँ. Your Q2 will become 0, your Q2 will become 1. Okay, so मैं इसको ऐसा करके रखता हूँ, so that you will understand. What about Q3? It will be again 0, and at the fourth clock pulse again you are giving 0, okay. In that case your Q0 will be 0. मैं बड़े से लिख रहा हूँ. Q1 will become 1, Q1 will become 1, Q2 will become 0, and Q3 will become 1. Okay, so it is 0 1 0 1. It is 0 1 0 1. Okay, you have started with the MSB. That is 1 0 1 0, and at the final stage you will see that Q0 will be 0, Q1 will be 1, Q2 will be 0, and Q3 will be 1. Okay, see here, now hold on. This is happening for fourth clock pulse. Can I say at the fourth clock pulse Q3 will give you 1? अब देखो इनपुट क्या दे रहे थे आप, 1 0 1 0. फोर्थ क्लॉक पल्स में आउटपुट में आ गया 1. फिफ्थ क्लॉक पल्स में, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट विल कम एज एन आउटपुट? फिफ्थ क्लॉक पल्स 0. वेरी गुड. तो ये जो 1 0 1 0 था ना, तो ये जो 1 है ना, मैं आपको उसको अलग से लिखता हूँ, 1 0 1 0. फोर्थ क्लॉक पल्स ये जो 1 है ये बाहर आया. फिफ्थ क्लॉक पल्स में ये जो 0 है ये बाहर आएगा. सिक्स क्लॉक पल्स में ये जो 1 है ये बाहर आएगा, और सेवन क्लॉक पल्स में ये जो 0 ये बाहर आएगा.
So can I say after your fourth clock pulse, actually you are getting the serial output. मैं इनपुट सीरियली दे रहा हूँ और आउटपुट भी मुझे सीरियली मिल रहा है. That is why it is called as CISO, serial input, serial output. Okay, and this is called as shift register. Why it is called as shift register? You have understood the meaning of register. It is a group of flip flops. Now it is called as a shift register because your data input, which are serially giving, is shifted one bit at a time with every clock pulse. With every clock pulse. हमेशा याद रखना, मुझे आउटपुट चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप को, तो क्लॉक देना है. यू रिमेंबर द क्लॉक, मैंने ये सब सिखाया आपको. यू रिमेंबर द क्लॉक. So whenever you give the clock, you will have the output. You will have the output. अगर क्लॉक नहीं दोगे, it is a whole state. जो पहले जो था वैसे रहने वाला है. हाँ, आपको अगर कुछ इनपुट देने के बाद अगर आपको आउटपुट में चेंजेस देखना है तो क्लॉक देना जरूरी है. तो क्लॉक देना जरूरी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फॉर दिस? Yes, any question? मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. सबको Yes, sir. सबको समझ में आया ये? Yes, sir. यस. तो मैंने आपको ये जनरल बताया, FF0, FF1, FF2, FF3, और इन पर्टिकुलर में मैंने बताया FF0 मैंने लिया है पे डी फ्लिप फ्लॉप. तो जब भी हम रजिस्टर को समझते हैं ना, तब हम यूजुअली डी फ्लिप फ्लॉप ही लेते हैं, ताकि डी फ्लिप फ्लॉप क्यों? बिकॉज इट इज डेटा फ्लिप फ्लॉप. जो इनपुट में जाएगा वही आउटपुट में आएगा. ओके, सो एंड इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड. Okay, so in particular I have taken D flip flop, and here I have shown you how the connections are made. Flip flop के जो connections है clock सबका, because every clock is connected together to a clock. It is a synchronous. Synchronous क्यों है? क्योंकि हर clock को हमने clock pulse दिया है, and all clock pulse are given simultaneously. Okay, and here I have shown you why it is called as a shift register, because your data is shifting from left towards the right, one bit at a time with every clock pulse. With every clock. Shall I proceed further? Shall I proceed further? Yes, sir. Okay. Now this is what is called as SISO. This is called as SISO. Similarly, you have serial in parallel out. अभी serial in parallel out में क्या होता है? Serial in parallel out. What is happening in serial in parallel out? That is serial in parallel out. अब इसमें क्या होता है serial in parallel out में? If I'm taking the example, the same example in general, that is FF0, FF1, FF2, and FF3. So serial input will be given. So your serial data input will be given here, and your output will not be taken from flip flop 3. It is parallel output, so data will be available parallelly. The data will be available parallelly. So this is Q0, this is Q1, this is Q2, and this is Q3. I am talking about the output of flip flop 0, Q0. Output of flip flop 1 is Q1. Output of flip flop 2 is Q2, and output of flip flop 3 is Q3. So this data will be available parallelly. Now here, if I have to explain you that all the outputs will be available after 4 clock pulses for a 4-bit shift register. अगर 4-bit shift register की बात कर रहा हूं मैं, अगर 4-bit shift register की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें भी अगर मैं SIPO की बात कर रहा हूं, तो आपकी ये जो 4 आउटपुट जो पैरेलली आ रहे हैं, वो आपको कब देखने को मिलेंगे? आफ्टर 4 क्लॉक पल्स. वो क्यों? फॉर एग्जांपल, वही अगर एग्जांपल है 1010 में दे रहा हूँ. अभी यहाँ पे मैं डी फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा. डी फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से मैंने पहले इसमें ही पढ़ाया. ओके, वही सेम एग्जांपल वी कैन अप्लाई फॉर द SIPO, PIPO, and the remaining 3. So what I mean to say that
1010, ये जो 1004 बिट है, ये हम अगर सीरियली दे रहे हैं तो हम पहले एमएसबी देंगे, तो पहले ये फर्स्ट क्लॉक पल्स में ये जाएगा अंदर, सेकंड क्लॉक में ये जाएगा अंदर, थर्ड क्लॉक पल्स में ये जाएगा अंदर, और फोर्थ क्लॉक पल्स में ये जाएगा अंदर। तो जब आपका ये 1010 आप सीरियली डाल रहे हो, तो ये लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप 3 पे जब जाएगा, तब आपका ये लास्ट वाला 0 जाएगा, सॉरी, आपके फोर्थ क्लॉक पल्स में आपके लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप पे FF3 पे आपका ये 1 जाएगा, क्योंकि ये आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स पे दिया है इनपुट। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स में इनपुट जो 1 है वो पहले यहाँ पे है, सेकेंड क्लॉक पल्स में वही 1 यहाँ पे है, थर्ड क्लॉक पल्स में वही 1 यहाँ पे आता है, और फोर्थ पे आपका क्लॉक पल्स यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये आपका 1 यहाँ पे है। वो केस में फोर्थ क्लॉक पल्स में आपका 1 यहाँ पे है। मुझे बताओ Q2 क्या है वो टाइम पे, Q2 क्या है? फोर्थ क्लॉक पल्स पे आई एम टॉकिंग अबाउट। फोर्थ क्लॉक पल्स पे आपका Q3 1 है, आपका Q2 क्या है? 0. वेरी गुड, तो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। और आपका Q1 क्या है? 1. और आपका Q0 क्या है? 0. हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, Q3 फोर्थ क्लॉक पल्स पे Q3 1 है, वो 1 ये वाला 1 है। फोर्थ क्लॉक पल्स पे आपका Q2 0 है, ये 0 है। फोर्थ क्लॉक पल्स पे आपका Q1 1 है, ये 1 है। और आपके फोर्थ क्लॉक पल्स पे आपका Q0 0 है, वो 0 ये है। तो फोर्थ क्लॉक पल्स पे हर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे कुछ ना कुछ है, और वो सब आउटपुट एट अ टाइम मुझे निकालना है बाहर, वो आउटपुट मुझे एट अ टाइम बाहर निकालना है। तो यू टेक Q0 फ्रॉम हियर, you take Q1 from here, you take Q2 from here, and you take Q3 from here. You will have all these output, parallel output. That's why serial data input, and this is called as parallel output. Parallel data output. Parallel data output. So that is called as SIPO. सीरियल इनपुट दे रहे हो आप, लेकिन पैरेलल आउटपुट ले रहे हो आप। पैरेलल आउटपुट में बोले तो एट अ टाइम, ऑल 4 आउटपुट्स एट अ टाइम। लेकिन 4 आउटपुट्स बाहर कब मिलेंगे? फोर्थ क्लॉक पल्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्लॉक पल्स पे। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे पे पूरे नहीं मिलेंगे, सेकेंड पे पूरे नहीं मिलेंगे, थर्ड पे पूरे नहीं मिलेंगे, फोर्थ पे पूरे मिलेंगे, फोर्थ पे सभी मिलेंगे जो हम दे रहे हैं। So serial data input and parallel data output. This is called as C. I hope you have understood this. सर ये हम लोग कैसे करते हैं? हाँ, क्या बोले? सर हम फोर्थ पे कैसे निकालते हैं? फोर्थ क्लॉक पल्स पे कैसे निकालते? यस सर. मैंने आपको वही समझाया, मैंने क्या बताया आपको, आपकी ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, so this is फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 एंड फ्लिप फ्लॉप 3। तो ये आप सीरियल जब डेटा देते हो, सपोज 1010 दे रहा हो, ठीक है, अब ये मैंने जनरल बता रहा हूँ, आपका डी फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले क्लॉक पल्स पे, वैसे तो क्लॉक पल्स आपने सभी को लगाया, इसको भी क्लॉक पल्स, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये क्लॉक पल्स को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे CL के दिखाया। ओके, तो ये दिस इज अ क्लॉक पल्स। तो आपको 1010 इनपुट देना है, सीरियली दे रहे हो। और आपका फ्लिप फ्लॉप 0 का आउटपुट आपको पता है Q0 बोलते हो आप, फ्लिप फ्लॉप 1 का आउटपुट को आप Q1 बोलते हो, फ्लिप फ्लॉप 2 के आउटपुट को आप Q2 बोलते हो, और फ्लिप फ्लॉप आउटपुट 3 को आप Q3 बोलते हो। तो पहले जब इनपुट में आप MSB दे रहे हो, तो ये 1 वाला जो है वो पहले फ्लिप फ्लॉप 0 पे जाएगा। दिस इज हैपनिंग फॉर फर्स्ट क्लॉक पल्स। सेकेंड क्लॉक पल्स पे आपका 0 इनपुट में गया, तो जब आपका फर्स्ट क्लॉक पल्स पे जब आपका फ्लिप फ्लॉप 0 में जब 1 है, और सेकंड में वो 1 यहाँ पे जाता है,
और सेकंड क्लॉक पल्स में आपका जो जीरो आप इनपुट दे रहे हो वो यहाँ पे आता है। सर ये समझा बिट बाय बिट आगे जाएगा, लेकिन वो साथ में एक बार बाहर आएगा। हाँ, साथ में कैसे है, क्योंकि साथ में कैसे है मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। अब ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट था, तो ये फ्लिप फ्लॉप को क्या था, ये देखो, ये इसको दिया था, तो मैं आउटपुट नहीं निकाल रहा हूँ। इसका इसको दिया था, इसको दिया था, और इसका दिया था। लेकिन मुझे अगर चाहिए सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, तो यहाँ से एक आउटपुट निकालो बाहर, यहाँ से एक आउटपुट निकालो बाहर, यहाँ से एक आउटपुट बाहर निकालो, और यहाँ से एक आउटपुट बाहर निकालो। तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा Q0, यहाँ पे मिलेगा Q1, यहाँ पे मिलेगा Q2, और यहाँ पे मिलेगा Q3। तो ये अगर ऐसा मैं डिजाइन करता हूँ, प्रोविजन करता हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज सीरियल इनपुट, क्योंकि सीरियली में इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन पैरेलली में आउटपुट निकाल रहा हूँ। लेकिन सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या है, मेरा आउटपुट यहाँ पे Q3 पे मिल रहा है। मेरा मैंने कुछ प्रोविजन नहीं किया कि Q2 से भी और Q0 से और Q1 से भी मुझे आउटपुट निकालना है। तो अगर आप ऐसा डिजाइन बनाते हो कि आपको एट ए टाइम आप पैरेलली आउटपुट निकाल पाओ, देन इट इज कॉल्ड एज पैरेलल आउटपुट। अभी समझा आपको? अभी समझा आपको? तो ये समझा, मतलब एक साथ में कैसे आते हैं फोर्थ क्लॉक पल्स पे? साथ में कैसे आते? खुद तो प्रोविजन करना होगा ना कि फर्स्ट 3 क्लॉक पल्स पे ना आए, नहीं तो फर्स्ट 3 क्लॉक पल्स पे भी आते रहेगा ना। नहीं, फर्स्ट 3 क्लॉक पल्स पे आपका आउटपुट आएगा। यस, अच्छा, आपका समझा मुझे क्या प्रॉब्लम है। वेट, यस। हाँ, एक मिनट। ये फ्लिप फ्लॉप से आपने Q0 निकाला, फ्लिप फ्लॉप से आपने ये निकाला, इस पे भी ये निकाला, इस पे भी ये निकाला, ठीक है। अब पहला जब आप डेटा दे रहे हो, पहला डेटा क्या आपका, ये 1 है, ये 1 है, ये जो 1 है, ठीक है। ये 1 आप पहले क्लॉक पल्स में दे रहे हो, तो फ्लिप फ्लॉप के Q0 पे वो 1 आ रहा है, आ रहा भी है, और वो आउटपुट में इसके भी इनपुट पे दे रहा हूँ, फ्लिप फ्लॉप 1 के इनपुट पे भी दे रहा हूँ, और मैं आउटपुट भी निकाल रहा हूँ यहाँ से। यस सर। हाँ, ये बात है। सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, आप जीरो दे रहे हो, तो वो जीरो आप फ्लिप फ्लॉप Q0 पे वो जीरो दिखेगा, लेकिन वो ये जीरो फ्लिप फ्लॉप 1 पे भी जाएगा। और सेकंड क्लॉक पल्स में जो फ्लिप फ्लॉप में आपने 1 दिया था, वो इसके फ्लिप फ्लॉप 2 के अंदर भी जा रहा है, यानी आप Q0 बाहर भी निकाल रहे हो, और Q0 फ्लिप फ्लॉप 1 को भी दे रहे हो। यस सर। हाँ, अभी समझा? फोर्थ पल्स के बाद पूरा आउटपुट आएगा ऐसा? हाँ, फोर्थ पल्स पे क्या होगा, फोर्थ पल्स पे आएगा आपके Q3 पे 1, Q2 पे 0, Q1 पे 1, और Q0 पे 0, ये वाला। यस। हाँ, अभी समझा? यस। हाँ, यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम आउटपुट भी निकाल सकते हैं, और वो सेम आउटपुट हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को भी दे सकते हैं, यानी देना ही है। जब देंगे तभी तो वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे जाएगा ना आपका आउटपुट, ये तो करना जरूरी है। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जो आपके 4 चीजें है ना, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, एंड पैरेलल इन सीरियल आउट, ये हर केस में हर एक फ्लिप फ्लॉप को आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना ही पड़ता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 बिट इनपुट, वो देना ही पड़ता है, फिर आपको जैसे देना है वैसा दो। अंडरस्टूड नाउ? यस। हाँ, अभी अगर वैसे ही मुझे आपको नेक्स्ट दूसरा बताना है, वैसे अगर मैंने अभी क्या आपका लिया, मैंने पैरेलल, हाँ, मैंने सीरियल इन पैरेलल आउट लिया। अगर मुझे पैरेलल इन और सीरियल आउटपुट लेना है, ठीक है, तो अब वो सिनेरियो भी कैसा रहेगा, ये आपके 4 है, दिस इज फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप 3। पैरेलल इनपुट, ये देखो पैरेलल इनपुट, और सीरियल आउटपुट देखो यहाँ पे ले रहे हो। अब ये क्या हो रहा है, अब ये केस में क्या होता है, ये चारों के चारों इनपुट जो है, फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 1 0 1 0, ये चारों के चारों एट ए टाइम दे रहे हैं हम, ये चारों के चारों एट ए टाइम दे रहे हैं हम, यानी एक
क्लॉक पल्स में, एक ही क्लॉक पल्स में 1010 अंदर जाएंगे, 1010 अंदर जाएंगे, 1010 अंदर जाएंगे। लेकिन ये आउटपुट सीरियल आउटपुट है, रिमेंबर दिस इज सीरियल आउटपुट। तो सीरियल आउटपुट, तो ये चारों के चारों जो मुझे आउटपुट में चाहिए वो फोर्थ क्लॉक पल्स में ही आएंगे, क्योंकि ये सीरियल आउटपुट है। एक क्लॉक पल्स में आपके ये चारों के चारों इनपुट बिट्स अंदर जाएंगे, लेकिन आउटपुट सीरियली आएंगे, 1 बिट एट अ टाइम फॉर एवरी क्लॉक पल्स। इसका मतलब सेकेंड क्लॉक पल्स में आपका आउटपुट आएगा, थर्ड क्लॉक पल्स में आपका आउटपुट आएगा, फोर्थ क्लॉक पल्स में आपका आउटपुट आएगा, और फिफ्थ क्लॉक पल्स में आपको आउटपुट आएगा। तो आपका ये जो 1010 आपको जो दिख रहा है वो सीरियली आउटपुट में आएगा। यानी ये देखो FF3 पे आपने 0 दिया, वो आउटपुट आपका आ गया पहले क्लॉक पल्स में। बाद में ये जो 1 है वो अभी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी आपने 1010 दे के छोड़ दिया, आप कंटिन्यूस कुछ नहीं दे रहे हो, आप एक ही बार 1010 दोगे, तो वो फर्स्ट क्लॉक पल्स में आपका 0 जो है ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे आ गया। सेकंड क्लॉक पल्स में आपका ये जो 1 दिया है ना वो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। थर्ड क्लॉक पल्स में ये जो 1 आप दोगे वो यहाँ पे आएगा फ्लिप फ्लॉप 2 पे, ओके, दैट विल कम हियर। बट फ्लिप फ्लॉप 3 से कब जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक पल पे जाएगा, तो नेक्स्ट क्लॉक पे आपका वो 0 जाएगा। तब तक ये बाकी की चीजें जो है ना वो ट्रांजिशन करके नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, और लास्ट में आप जब देखोगे तो इट इज 0 1 0 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। अंडरस्टूड नाउ? सर हाँ, यस। एक्चुअली मुझे रजिस्टर का बेसिक्स नहीं समझा, मतलब हम शिफ्ट कैसे करते हैं वो वाला एक बार समझा सकते हैं इस टाइप में? ये हमारे जो मतलब रजिस्टर, हाँ ठीक वो है, एक ही टाइप में फ्लो होता है ना, पीछे कैसे जाएगी मेमोरी, मतलब नहीं हम नहीं सीरियली नहीं सी हियर कंसेप्ट क्या है रजिस्टर का, कि रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अभी हम इनपुट कैसे दे रहे हैं और आउटपुट कैसे ले रहे हैं, वो हिसाब से हमारे 4 डिवीजन है, ठीक है। हम सीरियली इनपुट सीरियल आउटपुट ले रहे हैं, तो आपको मैंने वो कंसेप्ट पढ़ाया। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ओके। ये जो पहले वाला है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, यानी हम सीरियली आउटपुट दे रहे हैं और सीरियली आउटपुट ले रहे हैं। सीरियल इनपुट में हम सीरियल इनपुट दे रहे हैं, पैरेलली आउटपुट ले रहे हैं, यानी वो जो फ्लिप फ्लॉप है 4 बिट का, क्योंकि रजिस्टर का कंसेप्ट कब आता है कि जब मोर देन 1 बिट को हमको स्टोर करना है। और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4 बिट का, यानी हमारे इसमें 4 बिट बोले तो 4 फ्लिप फ्लॉप आएंगे। और 4 फ्लिप फ्लॉप कैसे कनेक्टेड रहते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप ये हिसाब से कनेक्टेड कर रहते हैं कैस्केड में, यानी इसका आउटपुट इसके इनपुट में, इसका आउटपुट इसके इनपुट में, इसका आउटपुट इसके इनपुट में, और इसका आउटपुट सीरियली आउटपुट चाहे तो ऐसा ले लो, या फिर आप पैरेलली बाहर निकालो, जैसे आपको चाहिए वैसा ले लो, ओके। सो दैट इज वाई ये जो कंसेप्ट है रजिस्टर का, that is a collection of flip flops depending upon how many bits you have to store, and depending upon how you give the input and how you take the output, you have these 4 types of different types of classification. अभी समझा आपको? हाँ सर ये समझा, बट वो शिफ्ट कैसे होते हैं ना वो वाला टेक्निक नहीं समझा, मतलब वन फ्लिप फ्लॉप से अनदर फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट कैसे होता है, जो हम सीरियली इनपुट दे रहे वो। वो अच्छा, शिफ्ट कैसा होता है? शिफ्ट तो दैट इज सिंपल, मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट। मैंने आपको वही समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था। D0, ये Q0, तो ये है आपका D फ्लिप फ्लॉप 0, ये आपका D फ्लिप फ्लॉप 1, ये आपका D फ्लिप फ्लॉप 2, ये आपका D फ्लिप फ्लॉप 3, ये D0 है, तो ये मेरा Q0 है। Q0 का आउटपुट गया D फ्लिप फ्लॉप 1 के इनपुट को, तो D फ्लिप फ्लॉप इनपुट, D फ्लिप फ्लॉप का 1 जो का इनपुट है वो कहलाएगा D1, तो D फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है वो कहलाएगा
Q1. Q1 जो है that will be as an input to D flip flop 2. तो D flip flop 2 का इनपुट को बोलते हैं हम D2. D flip flop 2 का आउटपुट को हम कहते हैं Q2. वो बन गया है D flip flop 3 का इनपुट. D flip flop 3 के इनपुट को कहा जाता है D3 और D flip flop 3 के आउटपुट को कहा जाता है Q3. ठीक है, और ये सब के जो क्लॉक है ये सिंक्रोनस है, यानी सबके क्लॉक को मिला के एट अ टाइम एक ही क्लॉक पल्स दिया जाता है. और मैंने बताया था क्लॉक का इंपॉर्टेंस क्या है. आपका आउटपुट आएगा जब आप क्लॉक दोगे. अगर आप क्लॉक नहीं दे रहे हो तो प्रीवियस आउटपुट को वो स्टोर करके रखेगा. ठीक है, आप पहला आपने क्लॉक पल्स दिया, पहला क्लॉक, फर्स्ट क्लॉक पल्स, आप इनपुट में क्या दे रहे हो? आप इनपुट में दे रहे हो 1010. तो सबसे पहले जाएगा MSB. ये MSB अंदर गया, D0 से अंदर जा रहा. इनिशियली आपका Q0, Q1, Q2, Q3 ये सब 0 0 0 0 रहते. इनिशियली 1010 देने के पहले ये सब 0 0 0 होते. पहला क्लॉक आया, पहले क्लॉक पल्स में आपके D0 में 1 लिया और Q0 में 1 आ गया. ये पहले क्लॉक पल्स में, ये पहले क्लॉक पल्स. ठीक है, लेकिन पहले इनिशियली Q0 0 था ना, इनिशियली मेरा Q0 0 था. तो वैसे ही D1 के इनपुट में 0 गया, इसलिए Q1 को भी 0 आ गया. लेकिन इनिशियली Q1 भी 0 था. तो Q1 जो था क्लॉक देने के कारण, ये पहले क्लॉक में सब ये हो रहा है. पहले क्लॉक में, क्योंकि सबके क्लॉक जब हमने मिला के एक ही क्लॉक दिया, पहले क्लॉक में ही ये सब हो रहा है. तो Q1 का जो आपका 0 था वो D2 के इनपुट में जाके Q2 भी आपका 0 बन गया. लेकिन इनिशियली Q2 भी मेरा 0 था. तो वो फर्स्ट क्लॉक में वो इनपुट बोल के D3 में गया और Q3 में भी वो 0 दिया. तो पहले क्लॉक पल्स में आपका क्या स्टेटस है? Q0, Q1, Q2 और Q3 का. पहले क्लॉक पल्स में स्टेटस है Q01, Q10, Q20, Q30. अभी आ गया सेकंड क्लॉक पल्स. सेकंड क्लॉक पल्स में ये 0 अंदर जाएगा, ये 0 अंदर जाएगा. ये 0 जब अंदर जाएगा सेकंड क्लॉक पल्स में, तब आपका Q1 जो 1 था वो D1 के इनपुट में जाएगा, वो D1 के इनपुट में जाएगा. तो पहले Q0 आपका 1 था, अभी वो क्या Q1 क्या हो गया? ये 0 अंदर जाने के कारण वो Q1 आपका 0 हो गया. तो मैं वो 0 इधर लिख रहा हूँ. लेकिन उस सेकंड क्लॉक के पहले फर्स्ट क्लॉक में आपका Q0 1 था, तो वो इनपुट में जाएगा D1 के, वो इनपुट में जाएगा D1 के, ताकि वो Q1 आपका अभी 1 हो जाएगा. ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. एक काम करता हूँ, इसको मैं स्क्वायर में डालता हूँ ताकि सेकंड क्लॉक में क्या हो रहा है वो समझ में आए. तो Q1 आपका अभी 1 हो गया. लेकिन सेकंड क्लॉक के पहले फर्स्ट क्लॉक में आपका Q1 0 था, तो वो D2 के इनपुट में जाएगा. तो D2 के इनपुट में सेकंड क्लॉक पल्स में वो D2 0 अंदर जाने के कारण आपका Q2 0 जाएगा. तो मैं 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ. सेकंड क्लॉक पल्स के पहले आपका Q2 का स्टेटस 0 था, वो अभी सेकंड क्लॉक के कारण वो Q2 इनपुट में जा रहा है और आपके Q3 में भी 0 दे रहा है. तो ये वो यहाँ पे आ रहा है. तो सेकंड क्लॉक पल्स में देखो स्टेटस क्या है? 0 1 0 0 0 1 0 0. अभी आपका थर्ड में आपका 1 अंदर जा रहा है. तो थर्ड अगर जब 1 अंदर जाएगा तो अभी मैं इसको ट्रायंगल में डालता हूँ. 1 जा रहा है, लेकिन उसके पहले 0 था, तो 0 D1 के इनपुट में गया, तो यहाँ पे भी 0 आएगा. उसको मैं ट्रायंगल में डालता हूँ. थर्ड पल्स में Q1 आपका 1 था, D2 को इनपुट देने के कारण वो Q2 में आउटपुट में वो 1 आएगा. वो यहाँ पे मैं ट्रायंगल पे डालता हूँ. और थर्ड पे आपका D2 का जो Q2 का आउटपुट जो 0 था, वो D3 के इनपुट में 0 जाने के कारण आपका Q3 भी वो 0 रहेगा. तो ये ऐसा होगा. तो थर्ड पल्स में देखो क्या हो रहा है? थर्ड पल्स में हो रहा है 1 0 1 0. और अब जब लास्ट में फोर्थ जाएगा, तो फोर्थ में आपका ये जब 0 जाएगा,
तब ये सब शिफ्ट हो जाएंगे और लास्ट में आपको क्या आएगा, लास्ट में आपको आएगा Q3 में आएगा 1 0 1, तो आप लास्ट में आएगा 0 1 0। अभी समझा आपको शिफ्ट कैसे हो रहे, अभी समझा आपको शिफ्ट कैसे हो रहे। यस सर। हाँ, तो ये आपको है ना आराम से समझना पड़ता है, पहले क्लॉक में क्या क्या चीजें हो रही है, सेकंड इसमें क्या क्या हो रही है, और फर्स्ट क्लॉक पल्स देने के पहले मेरा Q0 Q1 Q2 3 का स्टेटस क्या है, मेरा स्टेटस क्या है Q0 Q1 Q2 का, वो भी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली ये सब जीरो है, इनिशियली ये सब जीरो है, इनिशियली ये सब जीरो है। ओके, तो फिर देखना है कि फर्स्ट क्लॉक में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लॉक में ये गया, सेकंड क्लॉक में ये गया, थर्ड क्लॉक में ये गया, फोर्थ क्लॉक में ये गया, तो ये शिफ्ट होते रहते हैं। ओके, बिकॉज ये कनेक्शन ऐसा है, बिकॉज द कनेक्शन इज इन दिस मैन। अभी समझे आपको? यस सर। नाउ अंडरस्टैंड। ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट SIPO, ये हमने दिया था पैरेलल इन वेट, हाँ हमने पैरेलल इन सीरियल आउट भी लिया। अब एक लास्ट वाला रहता है, वो रहता है पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो वो भी वैसे ही कंसेप्ट है। ये हमारा ये हो गया, दिस इज माय फ्लिप फ्लॉप 0, दिस इज फ्लिप फ्लॉप 1, दिस इज फ्लिप फ्लॉप 2, दिस इज फ्लिप फ्लॉप 3। पैरेलल बोले तो पैरेलल all at a time, all at a time, and output all at a time, all at a time. So it is parallel input and parallel output, parallel data input and parallel output. Okay, so ये PIPO, ये PIPO में क्या होता है कि all the shift registers inputs are loaded simultaneously and all the output will be available simultaneously. और ये सब करने को कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, कोई बता सकता है कितने क्लॉक पल्स लगते हैं? मुझे एक ही बात बताओ, ये सब पैरेलल इनपुट लोड करने को कितने क्लॉक पल्स लगते हैं? 1। ओनली 1। एक ही क्लॉक पल्स में ये सब एट अ टाइम अंदर जाएंगे। अब मुझे बता सकते हो पैरेलल आउटपुट निकालने को कितने क्लॉक पल्स लगते हैं? 1। तो मुझे बताओ ये 1 और ये 1 अलग है या एक ही है? मेरा क्वेश्चन समझा सबको? यस। हाँ, ये 1 आपने बोला एक ही क्लॉक पल्स में हम ये चारों के चारों इनपुट दे सकते हैं। बाद में आपने मुझे बताया कि एक ही क्लॉक पल्स में ये चारों के चारों आउटपुट हम निकाल सकते हैं। और बाद में मैंने पूछा ये 1 क्लॉक पल्स और ये 1 क्लॉक पल्स ये अलग अलग चीजें हैं या एक ही है? एक ही है का मतलब है कि एक ही क्लॉक पल्स में आपका इनपुट भी जा रहा है 4 एट अ टाइम, और वही क्लॉक पल्स में आपके आउटपुट चारों आ रहे हैं एट अ टाइम। तो बताओ व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? यस, नो वन? नो वन? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। I will explain you with D flip flop. अब मुझे बताओ, I will explain you with D flip flop. This is clock, this is clock, this is clock, this is clock, all tied together, single clock. This is D0, this is D1, this is D2, this is D3, this is ठीक है, यहाँ से दिखाता हूँ, this is Q0,
this is Q1, this is Q3, sorry, Q2, and this is Q3. This is D0, D1, D2. So these are parallel input, and ये Q0, Q1, Q2, Q3, these are parallel output. This is D flip flop 0, this is D flip flop 1, this is D flip flop 2, this is D flip flop 3. अब मुझे बताओ ये डिजाइन पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट की है या नहीं? ये जो डिजाइन है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट की है या नहीं? यस हाँ, पहली बात तो आपने माना है कि ये है सर पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट की है, यानी PIPO. यस और नो? आई वांट आंसर. यस सर. हाँ, यस, एग्रीड. नाउ अभी मुझे बताओ जो मैंने पूछा था. एक डाउट था. हाँ बोलो. कि हम रजिस्टर में जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड के इनपुट में जाता है, राइट? वो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन अच्छा. से सिनेरियो की बात कर रहे हो. इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से सिनेरियो की बात कर रहे हो. अभी यहाँ पे सिनेरियो वैसा नहीं है. यहाँ पे सिनेरियो है पैरेलल इनपुट. पैरेलल इनपुट बोले तो 4 बीट एट अ टाइम, 4 बीट एट अ टाइम. वहां पे था सीरियल इनपुट. सीरियल इनपुट यानी 1 बीट एट अ टाइम. ओके सर. हाँ, ये पैरेलल है. पैरेलल बोले तो 4 बीट एट अ टाइम. सीरियल बोले तो 1 बीट एट अ टाइम. ठीक है. हाँ, अभी समझे आपको? हाँ सर. हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. मुझे बताओ ये जो मैंने क्लॉक बता रहा था ये क्लॉक अलग अलग है या सेम है? अभी मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये देखने के बाद? ये देखने के बाद ठीक है. और इसको सिंपल करने के लिए सपोज मेरा D0 1 है, D1 मेरा 0 है, D2 मेरा 1 है और D3 मेरा 0 है. तो डेटा जो पैरेलल इनपुट में मैं दे रहा हूँ वो है 1 0 1 0, जो पैरेलली एट अ टाइम दे रहा हूँ मैं. तो आप मुझे बताओ. नो वन हैज द आंसर. वन. हाँ, तो एक ही क्लॉक है ना. तो वो दो क्लॉक अलग अलग चीज है कि एक ही क्लॉक चीज, एक ही है वो? ये एक वाला ही. जो एक ही है ना, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. देखो आपने 1 0 1 0 यहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ पे 1 ला के रख दिया, यहाँ पे 0 ला के रख दिया, यहाँ पे 1 ला के रख दिया, यहाँ पे 0 ला के रख दिया. आपने अब तक क्लॉक नहीं दिया. आपने इनपुट ला के रख दिया, क्लॉक नहीं दिया. आपने जैसे क्लॉक दिया वो 1 का 1 Q0 में आ गया 1, D1 का 0 आ गया Q1 में 0, D2 का जो 1 है वो Q2 में आ गया एज इट इज 1, D3 का जो 0 था Q3 में आ गया वैसे के वैसे 0. डोंट यू थिंक यू आर गेटिंग दिस 1 0 1 0 एट अ टाइम विद अ सिंगल क्लॉक पल्स 1? यस तो ये हाँ, तो मैं पूछ रहा था आपको कि एक ही क्लॉक पल्स में आप इनपुट भी ले रहे हो और वही क्लॉक पल्स में आप आउटपुट भी देख रहे हो. तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो मैंने आपको डिफरेंट ये जो बताए सिनारियोज, ये सिनारियोज में सबसे फास्टेस्ट वाला कौन सा सिनारियो है? SISO, SIPO, PISO या PIPO? PIPO. PIPO. Yes, that is the fastest one. एक ही क्लॉक पल्स में इनपुट भी एट अ टाइम दे रहे हो, आउटपुट में एट अ टाइम चारों के चारों आउटपुट ले रहे हो. वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये सीरियल है. जहाँ पे सीरियल की बात आई तो 1 एट अ टाइम 1 एट अ टाइम 1 एट अ टाइम. पैरेलल की बात आ रही हो ऑल एट अ टाइम ऑल एट अ टाइम. तो यहाँ पे सीरियल है, यहाँ पे सीरियल है, यहाँ पे भी सीरियल है.
लेकिन यहाँ पे दोनों पे पैरेलल है, इसलिए ये जल्दी आएगा, ये जल्दी आएगा. ओके. Okay, let me tell you. Okay. Now you have understood the 4 types of scenarios. Everyone has understood now? Yes, sir. Okay, okay. हम आगे बढ़े. Shall we proceed? हाँ, ठीक है. I think we will stop as far as the theory is concerned, and we will proceed towards the lab now. Towards the lab. अब lab में जो मैं लेने वाला हूँ, so I want everyone to pay attention. Yes, so वर्चुअल लैब में जाना है. वर्चुअल लैब में गो टू द IIT Roorkee Digital Electronics. Go to the list of experiments. In this list of experiments, अभी हमने ये जो अभी जो पढ़ा है उसी के रिलेटेड we will see what we will see this. Yes, this one. Design and verify the 4-bit serial in parallel out shift register. Serial in SIPO. मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes. हाँ. So here this is the experiment. Experiment देखो क्या है, aim क्या है देखो, to analyze the circuit and truth table of 4-bit SIPO serial input parallel output shift register by using IC 7474. 7474 IC is a D flip-flop IC. Please remember this. IC 7474 is a D flip-flop IC. Okay. So you will be going with the theory. You will be going with the theory. So theory जो अभी मैंने पढ़ा है. So please go through this. Go through this. Okay. I'm not going to waste my time. This is n bit. हमने अब तक लिया 4 bit. 4 bit. तो 4 bit बोले तो 4 D फ्लिप फ्लॉप. यहाँ पे n bit बोले तो n नंबर ऑफ, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 किया है. ओके. सीरियल इनपुट. आप सीरियल इनपुट देखो, यहाँ से दे रहे हो डेटा इन, ये देखो, और पैरेलल आउटपुट ये देखो, यहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो. लेकिन यहाँ से तो निकाल रहे हो हम, लेकिन Q1 भी इसको दे रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट याद रखना, because this is serial input and parallel output. Okay. Q1 bar is not so important. This is complement. Clear. Do you remember the preset and clear button? Preset and clear. Everyone. Yes, sir. हाँ. तो Yes. उन्होंने भी वो एक प्रोविजन दिया है कि अगर इसको सभी को इसको मुझे क्लियर करना है, सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना है, तो ये क्लियर को आप दे दो. हमने देखा था दैट वाज एक्टिव लो, प्रीसेट एंड क्लियर. ओके. अब यहाँ पे बबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो हम अज्यूम करेंगे कि अगर मुझे ये सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना है इसका मतलब क्या है, ये सभी के आउटपुट में 0 0 0 आना चाहिए. तो बस यहाँ पे आप 1 दे दो, बिकॉज इट इज एक्टिव हाई. यहाँ पे बबल नहीं है, अगर बबल रहता तो मैं बोलता था 0 दो. यहाँ पे बबल नहीं है तो क्लियर बोले तो आपको बबल नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट हाई दे दो, 1 दे दो, 1. यहाँ पे 1 दे रहे, इसका मतलब सभी को 1 दे रहे हो, तो आपके आउटपुट में बाय इनिशियली सब 0 रहेंगे. ओके. सो आई वांट एवरीवन टू गो थ्रू दिस. विथ रेस्पेक्ट टू दैट यू हैव डेटा मूवमेंट. ये टेबल आपको देखना है. ओके. ये टेबल आपको देखना है, सिपो का टेबल. मैंने ये टेबल है, यानी आपकी जो डेटा आप दे रहे हो वो कैसे शिफ्ट हो रहे हैं. मैंने फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से बताया था. ये एक्चुअली ये टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से वेवफॉर्म है. ये देखो, पहले क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स, Q1, Q2, Qn. आपके बिट्स देखो कैसे शिफ्ट होते हैं, ये यहाँ पे सब दिया है. ओके. सो दिस इज अ थ्योरी. आई वांट एवरीवन टू गो थ्रू दिस थ्योरी. हम डायरेक्टली यहाँ पे सिमुलेशन देखेंगे. गो टू द सिमुलेशन. एक मिनट.
Okay, leave it. So see here now, we are using D flip flop 7171. Okay, तो ये देखो, ये एक 7171. Okay, I will show you. This is one IC 7474. This is the other IC 7474. I want to use 4 bit. ये देखो 4 बिट दिया है. सो एक आईसी में दो डी फ्लिप फ्लॉप है, ये एक है, ये एक है, और दूसरे आईसी में दो डी फ्लिप फ्लॉप है. तो मुझे दो आईसी यूज करने पड़ेंगे 7474. ओके, सो दिस इज द आईसी. नेक्स्ट इज दैट हाउ डू यू मेक द कनेक्शन. Okay, how do you make the connections now? Now here, if you see carefully, here if you see carefully, you will understand that देखो क्लॉक कहाँ पे दिया है, ये देखो क्लॉक कहाँ पे, पिन नंबर 3 क्लॉक, पिन नंबर 4 प्रीसेट, रिमेंबर प्रीसेट इज देयर, पिन नंबर 4. पहले उसके पहले ये देख लो, डी फ्लिप फ्लॉप, डी का इनपुट आप दे रहे हो यहाँ से, पिन नंबर 2, क्लॉक आप दे रहे हो यहाँ से, पिन नंबर 3, क्यू आप आउटपुट ले रहे हो पिन नंबर 5 पे, क्यू बार आप ले रहे हो पिन नंबर 6 पे, और प्रीसेट दे रहे हो आप पिन नंबर 4 पे, और ये जो है रीसेट, प्रीसेट एंड रीसेट, रिमेंबर प्रीसेट एंड रीसेट. रीसेट इज नथिंग बट क्लियर. ये देखो आर दिख रहा है ना, रीसेट इज नथिंग बट क्लियर. तो क्लियर दे रहे हैं पिन नंबर 1 पे. तो एज फार एज डी फ्लिप फ्लॉप, ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, ये आपके सामने ये वाला, उसके रिलेटेड ये देखो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 आर यूज फॉर ये डी फ्लिप फ्लॉप. यू आर यूजिंग पिन नंबर 8 9 10 11 12 and 13. Okay, and you know this is VCC and this is ground. This is VCC and ground. यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये भी देखो, ये दिख रहा है आपको, ये आर दिख रहा है, बबल दिख रहा है, दैट इज एक्टिव लो. रिसेट और क्लियर का मतलब एक ही है, याद रखना. और प्रीसेट और सेट हम एक ही मतलब है. ओके, प्रीसेट एंड सेट. अगर हमको आउटपुट में 1 चाहिए तो प्रीसेट गिव, प्रीसेट को एक्टिव लो दे दो. अगर हम चाहते हैं आउटपुट में 0 रहे तो रीसेट या फिर क्लियर को 0 दो. ओके, तो देखो दोनों जगह पे भी बबल है, दैट मीन्स इट इज एक्टिव लो. Any question related with the 7474 IC? Any question related with 7474 IC? Any question? मेरे आवाज आ रही है? Yes sir. किसी को डाउट है 7474 IC के रिलेटेड? नो सर. हाँ, तो यू हैव 7474 IC. तो ये एक फ्लिप फ्लॉप डी, ये सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप, ये थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, ये फोर्थ डी फ्लिप फ्लॉप, और कनेक्शंस वैसे के वैसे है. ये आपको वेरीफाई करने हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. आपको मैं डायरेक्टली अभी सिमुलेशन बताऊंगा. तो सी द सिमुलेशन. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ना, अच्छा ठीक है वो है. अभी आपको डेटा देना है. ये देखो डेटा के लिए, हाँ आपको डेटा देना है. दिस इज सीरियल इनपुट, आपका सीरियल इनपुट आपके ये फ्लिप फ्लॉप के डी को जाएगा. तो ये देखो यहाँ से दे रहे हो, तो ये आपका डेटा यहाँ पे जाएगा. ये स्विच है, स्विच ऑन है यानी आपने 1 दिया, स्विच ऑफ है इसका मतलब 0 दिया. अगर मुझे 1010 देना है तो पहले स्विच ऑन 1 गया, बाद में ऑफ 0 गया, बाद में 1, बाद में 0. ओके, बाद में 0. ये प्रीसेट, ये रीसेट की पिन है, ये प्रीसेट की है.
अब आपको चाहिए कि ये नॉर्मल काम करे, आपका फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल काम करे, डी फ्लिप फ्लॉप, तो आपको ये दोनों को हाई देना है। ये देखो हाई दिया है। अगर ये अगर रेड में रहता था तो हम 0 दे रहे, लेकिन हमको पता है ये एक्टिव लो है और हमको नॉर्मल ऑपरेशन करना है, तो हमको 0 नहीं देना है, हमको 1 देना है। तो इसलिए देखो रीसेट को भी 1 दिया है, ये ग्रीन कलर दिखा रहा है कि वो 1 दिया है, और प्रीसेट को भी ग्रीन दिया है, इसका मतलब 1 दिया है। अंडरस्टूड? ये देखो प्रीसेट यहाँ पे और आपका रीसेट वाला यहाँ पे, वैसा यहाँ का भी रीसेट और यहाँ का भी प्रीसेट, सबको कंबाइन करके यहाँ पे दिया। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? someone has to answer fast, टाइम कम है। someone has to say yes or no. Yes, sir. हाँ, so now there is a clock, now there is a clock, हमको क्लॉक इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। तो ये सबके क्लॉक जमा कर लो। एक क्लॉक यहाँ से, एक क्लॉक यहाँ पे है, एक क्लॉक यहाँ पे है, एक क्लॉक यहाँ पे है। ये सभी क्लॉक को जमा करने के बाद यहाँ पे लगा दिया, तो आपके डेटा भी आ गया, आपका प्रीसेट रीसेट 1 को रखा है और एक क्लॉक, और वो हिसाब से आपका भी ये आउटपुट आएगा। ये देखो पैरेलल आउटपुट, कैन यू सी द पैरेलल आउटपुट हियर? पैरेलल आउटपुट आपका ये Q0 यहाँ पे है, आपका Q0 यहाँ पे है, आपका Q1 यहाँ पे है, आपका Q2 यहाँ पे है, आपका Q3 यहाँ पे। आपको जैसे नाम देना वैसे दो। आपको लगता है तो यहाँ पे Q0 तो इसको Q0 करो, इसको Q1 करो, इसको Q2 करो, इसको Q3 करो, क्योंकि हमारा डेटा इनपुट जो जा रहा है पहले Q0 को जाएगा, D0 को जाएगा, तो D0 का आउटपुट Q0 है। आपको जैसे चाहे वैसे लो। ओके, अभी इन्होंने ऐसा दिया है तो वी कांट डू एनीथिंग। सो दिस इज द input which is given. This is the input which is given. Okay, so now how do you simulate? How do you simulate? Pay attention. How do you simulate? अभी सबसे पहले बैटरी लगाओ। ये देखो बैटरी लिया मैंने, बैटरी कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड। उसको सिर्फ क्लिक करना है, वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट करना है, इसका मतलब ये VCC और ग्राउंड ये सब हो गया। अभी मैं डेटा दे रहा हूँ। अब मैं डेटा दूंगा ना, तो ये देखो ये भी देखना है मुझे। तो मैं जो डेटा दूंगा, अभी सपोज मुझे अभी इनिशियली मुझे डेटा देना है, तो सपोज मैंने ये दे दिया डेटा, ये 1 दे दिया, 1 दे दिया मैंने, लेकिन आउटपुट में मुझे चाहिए, तो आउटपुट चाहिए तो क्लॉक देना है, तभी तो आउटपुट निकलेगा बाहर। तो देखो अभी क्लॉक देने के बाद क्या हो रहा है, ये देखो ये रेड हो गया, यानी D1 इनपुट में 1 दे रहा हूँ तो आउटपुट में आ गया। ठीक है, ये होने के बाद ये पहला क्लॉक है, तो वो आपको ऐड करना है ये टेबल में। तो अभी देखो वो पहला क्लॉक ऐड करने के बाद पहले क्लॉक में क्या हुआ, ये देखो सीरियल नंबर 1 क्लॉक दिया यानी 1, इनपुट मैंने डेटा दिया था 1, ये देखो Q3 1, ये बाकी के 0 0, इनिशियली ये सब 0 रहते हैं, इसलिए देखो Q0 Q1 0 0 ये, लेकिन Q3 1 आया क्योंकि मेरा डेटा इनपुट 1 गया, हो गया। सेकेंड में मुझे 0 देना है, ये देखो डेटा इनपुट स्विच को ऑफ करता हूँ, ये देखो ऑफ कर दिया, लेकिन आउटपुट आएगा जब मैं क्लॉक दूंगा। ये देखो क्लॉक दे रहा हूँ, अभी ये स्टेटस देखो क्या है, ये आप स्टेटस देखना है, ये देखो क्लॉक दे दिया, वो देने के बाद वो शिफ्ट हो गया, वो 1 शिफ्ट हो गया। अभी ये मुझे ऐड करना है टेबल में। सेकेंड क्लॉक में क्या हुआ, ये देखो ऐड कर दिया, ये देखो सीरियल नंबर 2 क्लॉक 2, मेरा क्लॉक 2 क्या था, यानी मैंने सेकंड क्लॉक दिया, मैंने डेटा इनपुट क्या दिया था 0, लेकिन ये जो 1 है ना, वो देखो 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और जो मैंने डेटा दिया था वो Q3 में आ गया। ये Q2 क्या है, वो शिफ्ट हुआ, Q1 क्या है, शिफ्ट हुआ। ओके, अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, फिर से मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से 1 देता हूँ। ओके, देखो मैंने 1 दे दिया, लेकिन क्लॉक देने के बाद आउटपुट आएगा। अब देखो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, ये देखो क्लॉक दिया, ये देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये क्लियर देखना है तो फिर से वो सिनेरियो को इसमें ऐड कर दो, थर्ड वाला सिनेरियो है जिसमें मैंने डेटा दिया था इनपुट, ये देखो 0 शिफ्ट, ये भी शिफ्ट, Q1 जो था वो भी शिफ्ट, और आपका ये जो 1 है वो कहाँ से है, बिकॉज आपने डेटा इनपुट दिया था 1। ओके, मैं क्या करता हूँ, सेकंड में ना हाई रखता हूँ, तो मुझे सिर्फ क्लॉक देना है। अब ये सिनेरियो देखो क्या है, ये सब सिनेरियो देखो,
मैं सेकंड में हाई रखता हूँ, सिर्फ क्लॉक मुझे देना पड़ेगा ताकि आउटपुट में रिफ्लेक्ट करे। ये देखो क्लॉक दिया, ये देखो 1 1 हो गया। ये मुझे इसमें ऐड करना है। ये देखो फोर्थ में क्या हुआ, डेटा इनपुट मैंने 1 दिया, ये 1 जो है वो इधर आया, ये 1 जो है वो इधर आया, ये 0 जो है वो 0 इधर आया, ये 1 जो है वो 1 इधर आया, और ये जो आपको नया जो 1 है वो यहाँ पे है, इसलिए आपका ये 1 है। ओके, दिस इज द केस। अभी दूसरा मुझे एक इम्पोर्टेंट बताना है, मैंने अभी क्लॉक दिया नहीं, मैं क्या करता हूँ, अभी मैं 0 डेटा इनपुट 0 देता हूँ और मैं अभी क्लॉक नहीं देता हूँ। तो देखो ये स्टेटस वैसे के वैसे है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये स्टेटस ऐड कर दो। ये देखो मैंने यही स्टेटस ऐड किया। अब ये देखो क्या है, सीरियल नंबर 5 क्लॉक दिया नहीं, ये देखो इसलिए 4 का 4 ही है। क्लॉक दिया नहीं है मैंने, 4 का 4 ही है। दिया रहता तो 4 का 5 होता था, लेकिन ये 4 का 4 ही है। यानी देखो सब सिनेरियो वैसे के वैसे 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1। So there is no change because the clock you have not given. So this is called as no change state. This is called as no change state. I hope you have understood. Understood everyone? Yes sir. Yes. देखो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट मैं सब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन आई हैव मेड योर फाउंडेशन सो दैट आप आराम से ये सब घर पे बैठे बैठे करो। इज इट फाइन? Yes, sir. Okay, so this is the experiment done. This is the experiment which is done. We will go to the next experiment. Yes, we will go to the next experiment now. These are very, very small experiments. So this thing I will be giving in your classroom as the remaining experiments. So you have to do this as early as possible and submit. Okay. Now the next experiment would be yes, verify the truth table of RS बोले या SR बोले एक ही बात है, JK, T and D flip flop using NAND and NOR. ये सब मैंने लिया है. This is not new. See the aim to verify the truth table and timing diagram of RS, JK, T and D flip flop by using NAND and NOR gates IC and analyze the circuits of RS, JK, T and D flip flop with the help of LEDs display. इसमें से मैं एक ही लेता हूँ. You can do the remaining. Theory आपको देखना है. Already I have explained you properly in the class. So you go with the theory. Directly we will see the simulation. See the simulation now. आपको इसमें से कौन सा लेना ले लो. मैं सिंपल वाला लेता हूँ. डी लेता हूँ मैं. डी फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया. Now I have explained you the logic diagram of D flip flop जहाँ पे criss cross connection है. तो वही criss cross connection है. Can any one of you tell me how many total NAND gates we use? How many total NAND gates we use in the logic diagram? How many total NAND gates? How many total NAND gates? 5. ठीक है, आप वो एक बार चेक करो. ठीक है, मुझे सिर्फ आपको एक बात बतानी है यहाँ पे. मैंने कौन कौन से NAND गेट इसमें हमने कौन कौन से NAND गेट यूज किए. सी प्रॉपरली. हमने यहाँ पे NAND गेट यूज किया है ये. यहाँ पे यूज किया है ये दोनों IC 7400 है. ये दोनों IC 7400 वाले. ये वाला और ये वाला. यस. तो आपने किसी ने तो मुझे 5 बोला था. यस. सो प्लीज सी थ्योरी में जो लिया था वो एक बार देखो और बाद में हमको यहाँ पे देखना. ठीक है. तो 5 NAND गेट्स वी हैव यूज्ड. ओके. अगर 4 रहते थे तो हम एक ही IC यूज करते थे, लेकिन 5 यूज करना है तो दूसरी IC भी लेनी जरूरी है. इसलिए ये वाला यूज नहीं है, ये वाला यूज नहीं है, ये वाला यूज नहीं है, और बाकी के कनेक्शन आपको पता है. ओके. सो यू सी दिस कनेक्शन प्रॉपरली. ओके. नाउ डायरेक्टली वी विल गो विद द सिमुलेशन. Before I go to the simulation, let me erase this. Yes, see the simulation now. अभी यहाँ पे सबसे पहले है ये आपके 2 LEDs है.
एक क्यू है, दूसरा क्यू बार है, याद में रखना, एक क्यू है, एक क्यू बार है, ठीक है। और ये डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप का आईसी आपको पता है, रेडीमेड आईसी है, लेकिन मेरे पास अगर रेडीमेड आईसी नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर नैंड गेट है, तो नैंड गेट को मैं ऐसा कनेक्ट कर सकता हूँ, ये भी मैंने थ्योरी में सीखा है। तो सबसे पहले मुझे पावर सप्लाई देना है, ये देखो मैंने पावर सप्लाई दी। पावर सप्लाई क्यों देना, देखो यहाँ पे वीसीसी है और ये वीसीसी है, उसको पावर सप्लाई देना। वो होने के बाद वही चीजें हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। अब देखो ट्रूथ टेबल में क्या है, मैंने पावर सप्लाई दिया, अभी देखो क्या है आपका, पावर सप्लाई दिया, लेकिन मैंने डी देखो मेरा क्या है, ऑफ है। ऑफ है इसका मतलब देखो आउटपुट में क्यू ऑफ है, लेकिन क्यू बार 1 रहेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अगर ये मुझे, हाँ मुझे अगर क्लॉक देना है, आई विल बी गिविंग द क्लॉक नाउ, हियर आई विल बी गिविंग द क्लॉक। सो विद दिस क्लॉक यू हैव दिस आउटपुट। ओके, ये मैं ऐड करता हूँ, ये देखो सीरियल नंबर क्लॉक दिया, डी 0 था, इसलिए आपका नेक्स्ट स्टेट 0 है और क्यू एन बार 1 है। ओके, so this is for the next state and this is for the previous one. Sorry, ये इसको आप पास्ट बोलो या फिर प्रेजेंट बोलो और इसको नेक्स्ट बोलो, जैसे आपको चाहे वैसा बोलो। ओके, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। यस, आई वांट यू टू सी दिस आल्सो, क्लॉक डायग्राम, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज क्यू बार 1, क्यू बार 0, क्यू इज इक्वल्स टू 1, Q D is equals to 1, D is equals to 0, C is equals to 1, C is equals to 0, 1 का मतलब क्लॉक है, नहीं है। D 0 का मतलब है D अगर 1 दे रहे हो 0 दे रहे हो, Q बोले तो 0 या फिर 1 एंड अकॉर्डिंगली Q बार एंड वो हिसाब से, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं D देता हूँ 1। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे चेंज हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि क्लॉक ही नहीं दिया मैंने। अब मैं जब क्लॉक देता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये 1 आ गया। अब ये मैं ऐड करता हूँ, अब मैं जब ऐड करता हूँ तो ये क्लॉक डायग्राम भी देखो और ये टेबल भी देखो, ये देखो अभी क्या हो रहा है, सी और नो। सेकंड क्लॉक दिया तब मैंने डी 1 पुट 1 लिया था, 1 लिया था, तो प्रीवियस मेरा था 0 और क्यू बार था मेरा 1। अभी नेक्स्ट स्टेज में हो गया बिकॉज ऑफ डी इज इक्वल टू 1, क्यू हो गया 1 और क्यू बार हो गया 0, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेट कंडीशन बिकॉज डी इज इक्वल टू 1। ओके, आप ये देखो ये क्या है, ये आपका पहले क्लॉक का स्टेटस है। अब पहले क्लॉक में देखो क्या है, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्लॉक में क्या है, पहले क्लॉक में आपका डी है, ये देखो पहला क्लॉक में आपका डी है 0, तो ये देखो इसके ऊपर देखो, मैं आपको इसमें बताता हूँ। यस, ये मेरा पहला क्लॉक है। पहले क्लॉक में आपको क्या क्या हो रहा है, ये सीधा ऊपर देखना है उसी लाइन में। पहले क्लॉक में आपका डी 0 है, ये देखो पहले क्लॉक में, फर्स्ट क्लॉक में आपका डी 0 है, तो आपका डी 0, ये देखो डी 0 है, ये 0 है, ठीक है। बाद में आपका क्यू 0 है, ये देखो क्यू का है, डी 0 है, क्यू 0, ये देखो क्यू 0 है, ये 0 देखो यहाँ पे 0। बाद में आपका क्यू बार 1 है, ये क्यू बार 1 है, ये देखो क्यू बार 1 है। सेकंड क्लॉक पल्स में देखो क्या है, सेकंड क्लॉक पल्स में क्या है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। सेकंड क्लॉक पल्स में डी आपका 1 है, ये देखो डी आपका 1 है, आप 0 से ऊपर गए, देखो 1 है। बाद में आपका क्यू देखो क्यू भी 1 है, ये देखो 1, नीचे रहता तो ऐसा रहता है, ऊपर गया तो देखो ऐसा है, तो 1 है। और आपका क्यू बार क्या है 0, ये देखो 0। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल डू वन थिंग नाउ, आई विल डू वन थिंग, ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, 1 देता हूँ, ये देखो 1 दे दिया और क्लॉक दे दिया, तब जाके आपका आउटपुट में आएगा, ठीक है। अब ये इसको मैं ऐड करता हूँ, ये देखो इसको ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, ये देखो तीसरा क्लॉक पल्स, तीसरे क्लॉक पल्स में आपने डी इक्वल टू 1 दिया। आपका जो क्यू एन प्लस 1 था, जो पहले था, वो पहले क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसे देखते हो, ये आपका 1 कहाँ से आया और आपका 0 कहाँ से आया। पहले जो था, पहले देखो पहले क्या था, ये देखो ये पहले था, दिस इज द 1। okay, so 1 0 is there, but after giving this it has become 1 and 0. So at this stage what is happening, you can see in this clock diagram. So this is called as a clock diagram, this is called as a clock diagram. Okay, so you do the changes
you will be building the table as per you give the clock pulse and the data input, and depending upon that, please mute yourself. किसी का तो भी ये on है. So there is some disturbance. Please mute yourself. I will take more 3 minutes. So you build up the table, and depending upon you see the logic diagram. Sorry, the clock diagram. Okay. So जैसे जैसे clock देंगे तो you will have the clock. So clock 1, clock 2 and clock 3. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Abhi this now the last. Then we will stop. Now the last वाला experiment is this. ये तो मैंने दिखाया आपको SR JK सबका करना है, ठीक है? Now the last one is okay. Implementation and verification of decoder and or demultiplexer. और एक बात और है, decoder और demultiplexer and encoder using logic gate. ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी. It will not take much of the time. And I want you to do this also. 4:1 multiplexer and 1:4 demultiplexer also. Okay. तो आपके टोटल 4 हो जाएंगे. आज अभी भी मैं ये दिखाता हूँ. This is also very easy. This is also very easy. But you will do this as a homework. I will going to show this. See here now. This is to analyze the two table of 4:2 decoder using NOT gate and 740 logic gate IC and 2 encoder using this. Okay, we will see the simulation. ये theory सब देख लो. Already I have explained you what is the decoder and everything. I have explained you. First we will see the decoder now. See the decoder. Decoder में उन्होंने यूज किया एक नॉट गेट 7404 और एक यूज किया है एंड गेट. दिस इज बाय यूजिंग लॉजिक गेट. डिकोडर का हमने डायरेक्टली यूज किया था, अभी हम डिकोडर का यूजिंग लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं. दिस इज वेरी इजी. डिकोडर का जब हम देख रहे थे, दिस इज 2:4 डिकोडर. दिस इज 2:4 डिकोडर. सबसे पहले आप वीसीसी कनेक्शन दे दो, तो मैंने वीसीसी कनेक्शन दे दिया. नाउ सी हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. ओके, whenever you give the power supply, ये दोनों भी आपके ऑफ है. सो इसका मतलब क्या है, your A and your B. So it is 0 0 0 1 1 0 1 1. ये आपके AB. तो 0 0 जब रहेगा तो you have to see what is Q0, what is Q1, what is Q2, what is Q3. You have to see Q0, Q1, Q2, Q3. So when 0 0 रहता है, that is nothing but what is going to be on. So in that case, everything will be 0. This will be on. For 0 1, everything will be 0 and Q1 will be on. For 1 0, everything will be 0. Q3 will be Q2 when Q1 Q2 will be 1, other will be 0. And for 1 1, Q3 will be 1 and other will be 0. So can I say this is nothing but your decoder? This is a decoder. 0 0, your Q0 will be selected. For 0 1, your Q2 will be selected. For this one, your Q2 will be selected, and for 1 1, your Q3 will be selected. Okay, so this scenario we will be able to see here now. See the scenario. See here now, all of you. ये 0 0 है, so you see Q0 is on. So it is 0 0 0 1. If you want to add, you can add. Here 0 0 there, Q0 1, all are zeros. Next here now. Sorry, ये नहीं. Next will be this one, so that it will be 1 0. Here add करता हूँ मैं. 0 1, so Q1 will be on, other will be 0. Then इसका reciprocal in the sense ये connection, उसको add करो. Can you see here Q2 is on? Yes, add करो. That is Q2 is on. And for both the cases 1 1, this is Q3 is on. So add this and you will see the table. So this is your 2:4 decoder. 2:4 decoder मैंने
आपको पढ़ाया था ऐसा में 2⁴, 1 2 3 4, दिस इज AB and this is your Q0, Q1, Q2 and Q3. So this is your decoder, 2⁴ decoder. Okay, have you understood this? I want you to actually go into the using the logic gate. ये मैंने ऐसा पढ़ा था, this is called as 2⁴ decoder. देखिए इसके अंदर क्या है, that is इसके अंदर है ये, this is a logic, this is a logic. Is it clear? So go with the theory, go with the theory. Now the last is remaining, last बोले तो the last thing about this is your encoder. encoder बाकी है लास्ट. अभी एनकोडर में भी वही चीज है. मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ. सप्लाई दे दो, ओके, सप्लाई दे दो. सो दिस इज योर OR gate, by this is by using OR gate. Now see here, if it is D0, you will see both the output are on. So you have see here D3, yeah, तो दोनों भी ऑन आएंगे. This is encoding, encoder. This is 4:2, 4 input and 2 output. So Q0 and Q1. अगर 1 1 रखता हूँ, see at a time only one will be selected. हाँ, देखो हम ऐसा करते हैं या फिर ऐसा करते हैं तो हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू विल सी द स्टेट्स. दिस इज एनकोडिंग D2. यानी एनकोडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, सी ना मैं बताता हूँ. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0. इसको एनकोड करना है. इसका एनकोड करूंगा तो ये रहेगा 1 और ये रहेगा 0. सो 0 1 0 0 का एनकोड करके वो है 1 0. ओके, दैट इज मीन. और अगर मुझे दूसरा उसका मतलब निकालना है, अगर दूसरा मतलब निकालना है, देन इट वुड बी सपोज मैंने इसको ऐसा किया तो ये हो गया मेरा 0, इसका ये हो गया 0 0 1 0. इसको एनकोडिंग करूंगा तो उसका मतलब है 1 0. so that is a mean. ओके, तो वही है यहाँ पे. इफ यू सी प्रॉपरली you will be able to see it here also. So when you are D3, D2 and this one, so it is, if it is 0 0 1 0, it is encoded as 0 1. It is encoded as 0. Okay, so this is the last one. Any question? See, you will be able to understand provided you have done in the theory class. Theory class में हमने ये सब लिया है, so nothing to worry. You have to just see carefully using logic gates. Okay, so in this we will be doing decoder and encoder. And the one which we will be doing as a homework, already I have told you, that is this one. Which one? 9th one, implementation of 4:1 mux and 1:4 demultiplexer using logic gates. This is one you will be doing as the homework. So in this you will be doing which one? Again I am doing experiment number 6, experiment number 7, experiment number 8 and experiment number 9. So 6 7 8 9 you will be doing this. Okay, the submission date I will let you know afterwards. Is it fine? Someone has to acknowledge. Yes. Okay, Manpreet, I think you can you all of you can leave, join to the Himali ma'am's class, and Manpreet, you can give me attendance afterwards. Yes, sir. Okay, chalo, bye bye. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. हाँ.